नमस्कार। पिछली बार हम लोग स्वामी जी का जो कर्मयोग के व्याख्यान है उसको आगे बढ़ा रहे थे। आई एम जस्ट टेकिंग द सेम हिज स्पीचेस ऑन कर्म yoga ahead now, and there was a point there about the his talk about the secret of work. Okay, is there any secret of the work? First of all, that the work has to be done, you have to earn something, you have to please somebody, you have to get some wealth for that, recognition for that. This is how general people understand, but that's not the real way of doing the work. Karma has to be done as a karma yoga, and for that you need to understand this secret. As in the previous session he was telling that each is great in his own place. Similar way here also Swamiji is very clear about how the karma has to be done. The karma has to be done in the right way, and that's why in the initial part itself, as we mentioned in our previous session also, that he is trying to differentiate between different ways you can help somebody. If you remove his wants for few hours, it's great help, no doubt about that. If you remove his wants for many days, it's even a greater help. That can be done by removing his physical wants like hunger, shelter, or his, you can try to give him little bit of needs of his daily needs. You can fulfill that for a month or two. These are not small things. They're the great things to at least allow him to survive his physical sort of life. His needs are fulfilled for a day, for a month, and that's great. Even that much is not happen. That much seva bhav may not be there with many people. It's a great thing to do. But then what is greater than that? The greater is if you are able to remove it for many months and for many years. So that can be done probably when you are going from the physical level, you are going to his vital or the emotional and the mental level. You are giving him education, you are giving him the way to live, you are giving the values which can be helping him to really work well in the society and be a worthy part of that, so that he is paid for it. He is remunerated in one way, in the cash or the kind for it. So that is the way you are giving him the way and the skills and the education which is able to sustain him for many years. That's a great help, greater than just giving him food and shelter, because that has only given him temporary relief. This is a better relief for him. But suppose you want to remove it forever, that he should never feel the want, उसको जरूरत ही नहीं पड़े और कुछ चीजों की। अगर आपने वो आपको उसको ज्ञान देना है तो भौतिक जगत का ज्ञान, जिसको हम शिक्षण लौकिक अर्थ से शिक्षण कहते हैं, वो नहीं होगा। वो और भी ऊपरी स्तर का एक आध्यात्मिक पारलौकिक शिक्षण होगा, जिसको उपनिषद में कहते हैं दिव्य विद्ये विदितव्ये पराच पराचैव। मतलब लौकिक शिक्षण भी है, उसका अपना महत्व है, लेकिन अगर पराविद्या का शिक्षण आप दे रहे, अध्यात्म का शिक्षण दे रहे, the spiritual knowledge is the only thing, Swamiji says, that can destroy our miseries forever. Any other knowledge satisfies the wants only for a time. It is only with the knowledge of the spirit that the faculty of want is annihilated forever. So helping man spiritually is the highest help that you can give. इस प्रकार से वो अपना पहला मुद्दा यहाँ रखते हैं कि ओनली बाय द स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान से ही मनुष्य की जो चाह है, मुझे और कुछ चाहिए, मेरी समस्याएं है, मुझे जो भी दुनिया से चीजों की जरूरत है वो मेरी पूरी नहीं हो रही है, ये जब तक भाव है तब कब तक नहीं जाएगा, जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक ये नहीं समझेगा कि मैं और मेरी सारी दुनिया एक ही है, मेरी जरूरतें जो ये है वो मेरी इंद्रियों की जरूरत है, मेरे शरीर की है, लेकिन मेरे अंदर और एक आत्मा तत्व है जो ना कभी जलता है, ना उसको कोई काट सकता है, ना उसका विनाश होता है। ये जब ज्ञान उसको मिलेगा तब वो सही अर्थ में वो मनुष्य है जो हमेशा के लिए उसकी जो जरूरत है वो खत्म हो जाएगी। एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट हेल्प यू कैन गिव टू समवन। He who gives man spiritual knowledge is the greatest benefactor of the mankind. And as such, we always find that those who were the most powerful of men, who helped man in his spiritual deeds, because spirituality is the true basis of all our activities. क्यों? क्योंकि उसी ने दुनिया के लिए सच्चे काम किए हैं, जो उसको दुनिया को उन्होंने आत्मज्ञान दिया, स्पिरिचुअल नॉलेज दिया उसको। और ये क्यों कहते हैं वो? क्योंकि वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे जिन्होंने मनुष्य के जो आत्मविद्या है, उसकी जो ये निरंतर उसके अंदर जो एक तड़प है, उसके अंदर जो ये एस्पिरेशन है, उसकी जो कभी नहीं बुझने वाली ये जो उसकी क्षुधा है, उसको शांत करना है। तो ये भौतिक एक दिन अन्न देके, एक दिन और कुछ पानी देके, एक दिन उसको रहने के लिए थोड़ा सा मकान देके नहीं होने वाला है। ये उसको ये समझाने से, ये सिखाने से होने वाला है कि तुम हो कौन, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारी इस दुनिया के लिए की जरूरत क्या है, आप किस प्रकार से अपने आप को ईश्वर की तरफ ले जा सकते हो। ये सबसे बड़ा ज्ञान होता है।
ये समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, शायद हमको लगता है इससे क्या होगा, लेकिन स्वामी जी आगे उस तुरंत समझाते हैं, बहुत साइंटिफिकली हर चीज रखी है, तुरंत उस वाक्य के आगे आता है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज द ट्रू बेसिस ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज। हमारी बाकी सारी क्रियाओं को, अपने सारे जीवन का आधार ही अध्यात्म है। अध्यात्म को ही हमारे लिए एक बाकी सारे के साथ आने वाला एक अपेंडेज नहीं है कि हाँ ये सब आ गया, उसके साथ और एक चीज भी आ गई, उसको भी रख दो। कहाँ रखेंगे? शोकेस में रखेंगे, या टेबल टॉप रखेंगे, या हमारे दीवार पे उसको चिपकाएंगे, या अपने और बहुत ही चाहते हैं तो हमारे जहाँ सोने की जगह है उसके वहां लेके जाएंगे। ये नहीं है। ये हमारे जीवन के पाश्चात्य लोगों के लिए इस प्रकार से बातें स्वामी कुछ अन्य जगह पे कहते हैं, और लोगों के लिए और संस्कृति के लिए और लोगों के लिए अध्यात्म शायद एक बाहर से लाने वाली चीज और घर को सुशोभित करने वाली चीज हो सकती है। भारत के लिए वो हमारे प्रकृति का, हमारे जीवन का अंतिम और पहला और अंतिम लक्ष्य वही है, उसी से हम लोग आए हैं, उसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हमारी सारी क्रियाओं का अगर कोई बेस है, अगर उसका कोई मूल है, अगर उसकी कोई हम कह सकते हैं आधार है, तो आधार यही एक आत्मविद्या है। और इसलिए वो देना, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग एंड साउंड मैन विल बी स्ट्रॉन्ग इन एवरी अदर रिस्पेक्ट। If he so wishes, until there is spiritual strength in man, even physical needs cannot be satisfied. क्या सुंदर वाक्य, क्या this is the way you should put the things in right perspective. इस चीज की क्या वैल्यू है, हमारी जीवन का परमोच्च मूल्य है वो अध्यात्म होना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए। हमें मूल्य देने में हम लोग चूक जाते हैं, हम किस चीज को मूल्य देते हैं, किसको नहीं देते, और क्या उसकी हमने अपने लिए एक स्तर बनाए, लोग निम्न से लेके उच्च तक हमारी जो हायरार्की बनी, वहीं पे गलती हो जाती है। वो कहते हैं कि जिसको आत्मविद्या है, जो आत्मविद्या से शक्ति प्राप्त कर चुका है, उसको अगर लगे, अगर वो अपने मन में ठान ले, तो वो भौतिक जगत में भी हर कुछ कर सकता है। लेकिन इट्स नॉट वाइस वर्सा। भौतिक जगत में सब मिलने के बाद भी आप आध्यात्मिक जगत में सब शक्ति नहीं मिल सकते, कुछ भी नहीं मिल सकता, आप खोखले भी रह सकते हैं। इसलिए उपनिषद में एक और भी वाक्य है कि मैन में गेट ऑल द टेक्नोलॉजी एंड द स्ट्रेंथ टू रोल द एंटायर यूनिवर्स एज इफ इट्स अ कारपेट, यथा चर्मवत आकाश है। सब आकाश को रोल करके कारपेट भी बना सकते हैं हम लोग, इतनी हमारी भौतिक शक्ति एक दिन विकसित हो जाएगी। लेकिन जब तक हम आत्मविद्या के स्वामी नहीं है, जब तक हमें वो नहीं मिलता है, उपनिषद कहते हैं, तब तक उसके दुख का कोई अंत नहीं है, तब तक उसके हीनता का, उसके क्षीणता का, उसके शांत होने का दर्द कभी भी, उसकी पीड़ा कभी भी तब तक खत्म हो नहीं जा सकती। इसलिए स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग साउंड मैन कैन बी स्ट्रॉन्ग इन अदर रिस्पेक्ट्स इफ ही सो विशेस, और इफ शी सो विशेस। हर बार ही का उपयोग करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, लेकिन स्वामी जी को ही और शी दोनों, सारे जो भी हम प्राणी मात्र है, सब मानव जाति है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, सबके लिए ये कहना है। कहने का सिर्फ तरीका है कि हर बार ही विशेष और ही डज वगैरह, ये कहने के लिए एक छोटा सा एक तरीका है, और कुछ भी नहीं। तो इसलिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल कम्स इंटेलेक्चुअल, उसकी भी एक अपनी एक श्रेणियां हैं। अगर स्पिरिचुअल विद्या है, उसके बाद क्या आता है, तो वो बौद्धिक ज्ञान है। आप किसी को बौद्धिक मदद करते हैं, आप उसको नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिदम् उत्तमम्, सबसे अच्छा वही है जो आप उसको दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक दान है, बहुत बड़ी सेवा है, अगर आप उसने आपको दे सके। और सबसे उसके नीचे भी जो आता है, आपको उसको अन्न दिया, आपको कुछ कपड़े दे दिए, आज कपड़े दिए, कल वो छोटे हो जाएंगे, कल वो उसमें कुछ वापस काम करना पड़ेगा, वो कहीं पे वो फट जाएंगे। आज अन्न दिया, कल सुबह तो कुछ उसका रहता ही नहीं है। तो ये हमारी जरूरतें कब तक रहती है? सीमित काल के लिए रहती है, वापस भूख लगती है, वापस दूसरा कोई वस्त्र खरीदना पड़ता है। लेकिन भौतिक ज्ञान और भी लंबे अरसे तक आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि जो अज्ञान है वही आपका मृत्यु है, जो ज्ञान है वही आपका जीवन है। ये भी उपनिषदों से, और हर हमारा जो काम स्वामी जी ने जो भी कहा है वेदांत का ही एक भाग था, और इसलिए वो इतना दिव्य, उसकी वाणी दिव्य, जो वो कह रहे थे, वो जो वेदांत है वो भी दिव्य, इसलिए आज भी उसका इतना महत्व है। इफ इट इज लाइफ इन द डार्क ग्रोपिंग थ्रू द इग्नोरेंस एंड मिजरी, उसका क्या वैल्यू है? इफ योर लाइफ इज लाइक दैट, यू आर जस्ट ग्रोपिंग इन द डार्कनेस, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, इट हैज गॉट नो वैल्यू एक्चुअली। नेक्स्ट ऑन ऑर्डर कम्स ऑफ कोर्स द हेल्पिंग मैन फिजिकली, ये लास्ट है, इसको फिजिकल हेल्प करना उससे सबसे निम्न, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। अगर उतना भी नहीं किया तो क्या फायदा? इट इज नॉट ओनली द लास्ट बट द लीस्ट, because it cannot bring permanent satisfaction. The misery that I feel when I am hungry is satisfied by eating, but hunger returns. जो अभी मैं कह रहा था, भूख वापस लगती है, and hunger will not make me miserable. No distress, no sorrow will come to me
if I understand that I'm satisfied by the higher thing. It's like a Maslow's hierarchy. Jab lower needs are fulfilled, then they no more become your motivators. You don't feel that because you have gone to the higher need now. So from physical needs, he says there is a psychological and there is a social need, and there is a ego need, and there is a social need, and then the self-realization or self-actualization. Maslow was obviously very much influenced by the Eastern thought. That's why he could make that. Unlike some other people who even could not, McGregor and all, they could not even that much motivational ideas they could not bring what Maslow could bring, because he had that Eastern base which was strongly supporting this type of holistic idea. स्वामी जी कहते हैं miseries of the world cannot be cured by physical help alone. Only until man's nature changes, nothing can change. These physical needs will always arise. Miseries will always be felt. No amount of physical help will cure them completely. The only solution to this problem is to make mankind pure. तो वो कहते हैं कि ये जो भौतिक मदद जो हमेशा के लिए नहीं रहती है, उससे दुनिया का दुख ये कभी भी दूर नहीं होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य का अंतरंग बदलता नहीं है, उसका स्वभाव बदलता नहीं है, तब तक ये बार बार आती रहेगी. उसको ये समझना चाहिए कि क्षुधा को मन अंतरंग से उसको कैसे देखना है और कैसे शांत करना है. तब तक बार बार भूख लगती रहेगी, भूख मिटती रहेगी, भूख जब नहीं मिटती है तो पीड़ा होती रहेगी. और इस प्रकार से मुझे थोड़ा है फिर भी मुझे और ज्यादा चाहिए, दूसरा भूखा है फिर भी मैं उसको नहीं दूंगा. इस प्रकार का एक स्वार्थी भाव भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके सारे के रूट में अज्ञान है, इग्नोरेंस है. और इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ ऑल द इविल्स एंड ऑल द मिजरी व्हाट वी सी. ये अज्ञान, ये अविद्या ही सारे जो भी यहाँ दुष्टता है, सारी गलत चीजें दुनिया में हो रही, उसका मूल ये अविद्या है या अज्ञान है. लेट men have light, let them be pure and spiritually strong and educated. Then alone the misery will cease to in the world, not before. We may convert every house in the country into a charity asylum. We may fill the land with hospitals, but the misery of man will still continue to exist until man's character changes. मतलब जब तक लोग एक प्रकार से कह सकते कि आध्यात्मिक दृष्टि से ये प्रभावशाली नहीं होते, बलशाली नहीं होते, जब तक वो शिक्षित नहीं हो जाते, तब तक यहाँ से दुख का कोई निवारण नहीं होगा, कहीं भी पीड़ा खत्म नहीं होगी. चाहे आप हर घर को एक प्रकार से क्या कहते हैं उनको, एक सेवा का बहुत बड़ा केंद्र बना दो, दान का और सेवा का केंद्र बना दो. आप पूरी आपकी जो जितनी भी आपके पास जमीन है उसको सारी तरफ आप दवाखाने और आप वैद्य गृह बना दो, उनको हॉस्पिटल्स बना दो. लेकिन जब तक ये नहीं हो रहा है, जब तक मनुष्य का unless the man's character changes, nothing is going to happen. ये स्वामी जी का और ये सारे भारतीय विचार का विशेष है, जो अभी तक पाश्चात्य जगत उनके जो उनका क्लिंगिंग है मटेरियलिज्म से और ये भोगवाद से, उसकी वजह से समझ नहीं पा रहा है. इसलिए वो बार बार उसको they are trying to put the cart before the horse. वो मैटर को स्पिरिट के आगे रख रहे हैं, उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं. वो जो फिजिकल नीड्स है, वाइटल नीड्स है, उनको इंटेलेक्चुअल से आगे रखते हैं और इंटेलेक्चुअल नीड्स से स्पिरिचुअल नीड्स से आगे. दिस इज लाइक ए पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स. हाउ द कार्ट इज गोइंग टू पुल द हॉर्सेस, इट इज द हॉर्सेस व्हिच आर गोइंग टू पुल द कार्ट. यही बात भगवद गीता में बार बार आती है कि वी मस्ट डू ऑल आवर वर्क इंसेसेंटली. ऑल वर्क इज बाय नेचर कंपोज्ड ऑफ गुड एंड इविल. भगवद गीता में भी यही कहा जाता है कि हर बार हमको निरंतर काम करते ही रहना चाहिए. नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत. एक क्षण क्षण में भी हमारा काम होना चाहिए, इंसेसेंटली, अव्याहत करते ही रहना है. क्योंकि हर चीज अगर आप रुक जाए और आपको लगे ये अच्छा है ये बुरा है, कितना सोचेंगे आप. हर काम में बाय नेचर कुछ अच्छा है कुछ बुरा है. इफ यू कैनॉट डू एनी वर्क विच विल नॉट हैव सम गुड समवेयर and there cannot be any work which will not have a harm somewhere. तो दोनों होने वाले, किसी को उससे दुख होगा, किसी से सुख होगा, किसी अच्छी चीज का उसमें आ जाएगा, किसी बुरी चीज का आ जाएगा. हम जानते हैं जब समुद्र मंथन भी हो गया तो उसमें से अमृत भी आ गया और विष भी आ गया. जीवन के वो एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक हमारा सारा लिटरेचर है कि जब भी आप कोई मंथन करते हैं, वैचारिक मंथन हो या शारीरिक काम हो या कोई भी चीज हो, उससे अमृत भी आने वाला है, विष भी आने वाला है. इट इज गोइंग टू हैव गुड ऑल्सो एंड एविल ऑल्सो. So what are you going to do? Are you going to stop for that? Every work is a necessary mixture of good and evil. Yet we are commanded to work incessantly. God has told us that to work is your right, not to think of what is good, what is evil, and what is good for me, and what I will get out of it, what is the fruit of it. That's not your job yet. And you don't have that intelligence to think of that. You don't think so much. That's me who is going to take care of it. Because good and evil are the two sides of the same coin. Good and evil will both have their results, will produce their karma.
Good action will entail upon us good effect, bad action will have bad effect. But good and bad are both bondages of the soul. ये दोनों भी है, ये आत्मा के लिए बंधन ही बन जाते हैं. The solution in which is reached in the Gita in regard of this, सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों भी अंतिमता हमारे जीवात्मा के लिए बंधन ही बन जाते हैं. तो कर्म तो करते रहना है, लेकिन ये भी समझ लेना है कि उसके रहस्य क्या है. तो इसलिए वो बता रहे हैं कि इट्स लाइक डूइंग गुड थिंग्स आल्सो अल्टीमेटली बाइंड्स यू, डूइंग बैड थिंग्स आल्सो बाइंड, बिकॉज एनीथिंग यू डू एक्चुअली इज बोथ गुड एंड बैड. It's a combination of that, is inseparable mixture of something good for somebody else and something evil for someone else, and each one will receive it in a different way. So solution reached in Gita in regard is the bondage producing nature of the work is this, and that's why do not attach yourself to the work what you are doing. It will not have any binding effect on your soul. You don't get attached to that. ये आपका कर्म है, ये आप है, लेकिन दोनों के बीच में एक प्रकार का अलिप्तता होनी चाहिए. You have detachment, एंड उसके बिना आप मुक्त नहीं हो सकते. आपका जो आत्मा है उसके अंदर ही अदरवाइज वो अटकते रहेगा. इसलिए नॉन अटैचमेंट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज द ग्रेट आइडिया ऑफ नॉन अटैचमेंट. और इसलिए गीता का वो जो श्लोक है कि आपको काम करते रहना है, और ये जो आपके संस्कार है, संस्कार कैन बी ट्रांसलेटेड एज द इनहेरेंट टेंडेंसी, उसके हिसाब से आपको वो काम करना है. आपके स्वधर्म, संस्कार और स्वभाव के हिसाब से काम करते रहो, और लगातार करते रहो, निरंतर करते रहो, अव्याहत करते रहो. अगर आप देखेंगे कि एक सरोवर है, just take a simile of a lake for a mind, then every ripple, every wave that rises in the mind is like a thought which comes. Every karma as they said in the beginning is both thought as well as the actual physical action. So it's like a ripple on that sarovar, it's like a ripple on that lake of the mind, and then when it subsides, it will not die, it will leave some mark on that. And that's why in future again that may come out. The future possibility of that wave is like it can come out again, coming out again. This mark with the possibility of the wave reappearing is called as a sanskara. When one time it has happened, again there is possibility that the wave will reappear. The same thing will happen again, and ultimately it becomes a part of you. The sanskaras ultimately guide you to do every action, because you can't do away with can't do anything else. So good sanskaras will give you a good sort of a karma, and ultimately lead to be a sajjan, and a bad sanskaras can also lead to the same opposite end of becoming a very evil person also. So every work that we do, every movement of the body, every thought that we think leaves such an impression on our mind stuff. हमारा जो चित्त का ये सारा सरोवर है, मनस का सरोवर है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो भी हम सोचते हैं, जो भी करते हैं, उससे उसके ऊपर एक इंप्रेशन आ रहा है, उसके ऊपर एक लहर आ रही है. और ये सारे जो इंप्रेशन दे आर नॉट ऑब्वियस ऑन द सरफेस, बट दे आर सफिशिएंटली स्ट्रांग टू वर्क बीनीथ द सरफेस सबकॉन्शियसली. हो सकता है कि आपके चेतन स्तर पे वो इतने लगे नहीं आपको प्रभावशाली, लेकिन आपका जो अर्धचेतन भाग है, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस भाग है, अचेतन या अर्धचेतन का जो भाग है, जो पाश्चात्य ने अभी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बात की पिछले 200-300 साल में, लेकिन हमारे प्राचीनता से हमको पता है कि चेतना के अलग अलग स्तर है. अचेतन है, अर्धचेतन है, चेतन है, अति चेतन है, ये सारे स्तर उसमें आ जाते हैं. तो जड़ जीव से लेके परमात्मा तक ये और कुछ नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना कितनी जागरूक होगी उसका ही एक फर्क है. तो इसलिए they will work at subconscious level. What we are every moment is determined by sum total of these impressions on the mind. हर वक्त हम क्या है, ये हमारे ऊपर ये सारे जो पूर्व इंप्रेशंस या पूर्व जो हमारे ऊपर जो लहरें आई थी, उनका ये सारा इम्पैक्ट है. What I am just at this moment is the effect of sum total of all the impressions of my past life. This is really what is meant by the character. Each man's character is determined by the sum total of these impressions. इसलिए वो कहते हैं कि मैं आज क्या हूँ, इस क्षण में क्या हूँ, ये सारे हमारे पिछले जन्मों से जो संस्कार हुए, जो मेरे कृतियों से और मेरे विचारों से जो लहरें मेरे मन में आई और मेरे मन के अर्धचेतन और अचेतन अवस्था में वैसी ही रह गई, चूंकि वापस आने की हर संभावना के लिए तैयार है. तो ऐसे सारे ये लहरों का एकत्रीकरण करके ही मनुष्य का चरित्र बनता है. इस जन्म के ही नहीं, पिछले सारे जन्मों का भी एकत्रित परिणाम ये हमारा चरित्र है. और हर इंसान का जो चरित्र है वो इस सारे संस्कारों की एक तरह से इकट्ठा रखा हुआ परिणाम है. जो अच्छे इंप्रेशन है वो प्रिवेल होते हैं और आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर्स बिकम गुड. If there are bad, then the man will continuously hear the bad words, bad thoughts, bad actions, and his mind will be full of bad impressions only. And they will influence his thought and work without his being conscious of the fact. Many times he doesn't even know that I am doing something wrong,
because it has become part of his, so much they are sort of unconsciously guiding, or sort of not only guiding, but they have possessed him. They are dominating his entire conscious living also, that he does that, all that which they are actually making him to do. So इसलिए bad impressions are always working, and the resultant is going to be, it must be evil, स्वामी जी कहते हैं, and that man will be a bad man. He cannot help it. महाभारत में दुर्योधन का एक बहुत सुंदर वाक्य है, वो तक he cannot help it, जहां स्वामी जी यहाँ कहते हैं that man will be a bad man, he cannot help it, because it is a some resultant of all the impressions which have come on him, bad thoughts, bad actions, bad words said by his parents or the other people from his childhood, or even before his childhood, when he was in the womb of his mother. He has heard so many bad things, he has seen the violence, he has experienced so many shocks, that actually today science proves that all that is going to influence his childhood, and also his grown-up stages are all result of that. And not only this, India says that, Indians philosophy says, not only this impressions of this life, but even before lives, the earlier lives also, all that has come. That's why I was telling you, Duryodhana says that I know what is bad, don't tell me what is bad, I know it very well, but it is not my nature to be good. I cannot leave the bad things. Janami adharmam nachame निवृत्ति, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति. मुझे पता है अच्छा क्या है, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं. मुझे ये भी पता है अच्छा क्या है, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूं. तो ये जो है वो कॉन्शियस, ये हमारे जीते जागते और हमारी चेतन अवस्था में हमारी बुद्धि तो हमें बताती है कि अच्छा है क्या बुरा है. उतना समझ दुर्योधन में भी थी, कंस में थी, हर रावण में भी थी, लेकिन संस्कार नहीं थे. और संस्कार से आपका चरित्र बनता है. आपके सोच, जो समय अगर आपके मन में एक अच्छा विचार भी आ गया, वो आपको बदलने में सक्षम नहीं हो जाता. आपको किसी ने इक्वेशन भी दे दिया, आपका जीवन उससे बदल नहीं जाता है. आपने एक पूजा कर दी, जीवन सफल उससे बदल नहीं जाता है. आपका जो सदियों से चलता आया वो आपके अर्धचेतन और अचेतन मन का संस्कार है, जो मन की लहरें है, वो अल्टीमेटली डिसाइड करते कि परीक्षा के क्षण में आप रावण बनेंगे या राम बनेंगे, आप कंस बनेंगे या श्री कृष्ण बनेंगे, आप दुर्योधन बनेंगे या अर्जुन बनेंगे. तो जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, ये कहने का जो तात्पर्य ये है. So that is the way he says that as you think, so are you going to become. So that also shows that if you do good works today, if you think good thoughts today, you are going to become great person for tomorrow. So इसलिए वो ये दोनों का जो corollary है वो भी दिखाते हैं. और वो जैसा हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण कूर्म का है, गीता में भी वो श्लोक आता है कि जैसा as the tortoise tucks his feet and head inside the shell, and you may kill it or break it in pieces, and yet it will not come out. Even so, the character of the man is who has the control over his motives and organs is unchangeably established. जैसे उसको आप कवच को आप हिट करो, आघात करो, आप उसको तोड़ो भी, तो भी वो कुर्मा है वो बाहर नहीं आएगा. उसने एक बार जब उसके सब अंदर खींच लिए, ये उसका कवच है. इस प्रकार का कवच एक चरित्रवान जो पुरुष या स्त्री होती है, उसके ऊपर ये कवच बन जाता है पूरी जिंदगी. उससे सारी इंद्रिय, उसकी सारी भावनाएं, उसकी सारी वासनाएं, उसको उसने पूरी तरह से अपने अंदर कंट्रोल करके लिया है. उसके ऊपर उसका पूरी तरह से उसका अंकुश है. जब चाहिए उसको ला सकता है धर्म के लिए, अपने गृहस्थ धर्म के लिए या और किसी धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए. अगर जरूरत पड़े तो वो उसको राग भी आ सकता है, उसका द्वेष भी आ सकता है, उसकी हिंसा भी हो सकती है, हर कुछ संभव है. लेकिन जब नहीं चाहिए, जब परिस्थिति वैसी नहीं है, जरूरत नहीं है, तो वो सारे को इकट्ठा करके अपने आप ही समा लेता है. यही एक जितेंद्रियम, एक योगी की एक प्रकार की एक अवस्था. इसलिए कुर्मा अवतार को ये महत्व है. और he controls his inner forces, nothing can draw him out of it. कि कुछ भी करो, निंदी निपुणा यदि वा स्तुवन्तु. भर्तृहरि कहते हैं कि कोई मुझे गाली गलौज कर दे, निंदा कर दे, या बहुत सारी स्तुति सुमन भी मुझ पे बरसा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लक्ष्मी आज आ जाए या और 100 साल तक न आए, मैं ऐसे ही गरीब रह जाऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ता. मृत्यु आज आ जाए और 100 साल के बाद आ जाए, मैं अमर हो जाऊं या आज ही मर जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब धीर पुरुष, जब वीर पुरुष अपने उन्होंने जो एक मार्ग अपने लिए चुना है, जो उनका स्वधर्म, स्वभाव और संस्कार और अधिकार की वजह से उन्होंने वो चुना है, उस मार्ग पे जब वो एक कदम रखते हैं, तो चाहे जो भी इसमें से हो जाए, जो ऊपर वो कह रहे थे, धन आए जाए, मृत्यु आए जाए, मेरा स्तुति हो या मेरी निंदा हो, कुछ भी हो, वो एक पग भी उससे दूर नहीं हटते, वो एक कदम भी उससे आप उसको हिला नहीं सकते.
ये उसकी दृढ़ता है, ये उसकी निष्ठा है, ये उसका तात्पर्य है कि उसका चरित्र वैसे बन गए। चरित्र का मतलब सिर्फ कुछ खाना, कुछ नहीं खाना, कुछ ये करना वो करना, ये नहीं है। श्री कृष्ण भगवान के अवतार में हमें दिखता है कि ये ऊपरी सारी चीजें आप क्या कर रहे उसका महत्व नहीं है, आप अंदर से क्या बन गए। यही स्वामी जी हमें बार बार कहते हैं, दिस इज द वे ही वॉज एबल टू बिकम दैट, बी एंड बिकम इज दैट, यू नो। So this is a good impressions moving on the surface of the mind. The tendency for doing good becomes the strong, and therefore you can make strong things stronger. You can make weak things weaker. That's a very conscious effort. Thus alone the character will be established. Then alone a man gets the truth. Such a man is safe forever. He cannot do any evil. You may place him in any company. There will be no danger for him. This is there is still a higher state than having this good tendency, and that is a desire for liberation. तो ऐसे इंसान जिसका चरित्र एक बार कह सकते हैं कि वो बिल्कुल निर्धारित हो चुका है, वो एक दृष्टि से एक बर्फ बन गया है, अभी वो पिघलेगा नहीं। आप कहीं भी उसको रख दो, उसके में कोई अंतर नहीं आएगा। वो कभी भी एक बुरी संगत में भी वो बुरा नहीं हो सकता, इतना वो अपने आप में स्ट्रांग हो गए। तो इसलिए वी हैव टू कंट्रोल दैट, यू नो, वी हैव टू कंट्रोल द इंद्रियाज, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, और वो जो हमारे नर्व सेंटर से, सेंस ऑर्गन से, सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। Thus alone character will be established, और कुछ उसमें हिला नहीं सकता है। You must remember that freedom of the soul is the goal of all yoga, and each one equally leads to the same result. But work alone, men may get to the where the Buddha has got by the meditation, or Christ has got the pair. आपके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ कर्म करते करते भी कुछ हमारे जो लोग थे महायोगी बन गए, या वो अपने आप को मुक्त हो गए। जहाँ बुद्ध एक प्रकार से ध्यान से पहुंच सके, जहाँ जीसस एक हम लोग कह सकते हैं प्रार्थना से पहुंच सके, उसी जगह जब हमारे लोग बात कर रहे थे, जो कर्मयोगी बात करते, तो सिर्फ कर्म करते करते भी वहां जा सकते हैं। और ये वो बार बार बुद्ध और क्राइस्ट के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि वो पाश्चात्य जगत को भी उद्बोधित कर रहे थे, तो उनको समझने के लिए उदाहरण आवश्यक थे। वरना हमारे यहाँ बहुत सारे संतों के नाम, महापुरुषों के अवतारों के नाम भी उसकी जोड़ सकते हैं, लेकिन ज्ञानी होना, भक्त होना, ये उसके पर्याय है। लेकिन किसी भी अवस्था में, या कर्मयोगी होना, हर कोई उसी रास्ते से मंजिल तक पहुंच सकता है। दोनों पहुंच सकते हैं, तीनों पहुंच सकते हैं, चारों पहुंच सकते हैं, लेकिन मुक्ति जो है वो कंप्लीटली स्वतंत्र होना है सारे बंधनों से, अच्छे बंधनों से भी और बुरे बंधनों से भी। जैसे सोने की जंजीर भी आपको बनती है और बांधती है, और लोहे की जंजीर भी, दोनों से आपको मुक्त होना है। ये स्वामी जी कहते हैं, गोल्डन चेन इज एज मच ए चेन एज दैट। तुरंत आ ही गया, स्वामी जी के उदाहरण ऐसे आते हैं कि गोल्डन चेन इज एज मच एज द चेन एज द आयरन वन। दोनों को फेंक दो। अगर मेरे एक यू नो उंगली में कांटा घुस गया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे कांटे को लेके पहला निकाल देता हूँ और बाद में दोनों को फेंक देता हूँ। यही हमारे अध्यात्म का एक बहुत सुंदर सिद्धांत है। आप कांटे से आप दूसरे कांटे को निकाल सकते हैं, एक बुरे कांटे को अपने अच्छे कांटे से निकाल दिया, लेकिन अंततः दोनों कांटे ही है, दोनों को फेंक दो, आप दोनों से मुक्त हो जाओ। So bad tendencies are to be counteracted by the good ones. Bad impressions are to be removed from the fresh good ones until the evil is totally disappeared, and then you come out of that good one also. You detach yourself from the total thing. आप completely detach होके जब काम करेंगे, तभी आपका काम, आपकी पूजा हो जाएगी, वही आपका योग हो जाएगा, उसी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से बहुत सुंदरता से मानव को हम सबको उद्बोधित करते हैं स्वामी जी। उनको शत शत प्रणाम। उनका ये सारे सिद्धांत को समझने की हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, और आशा है कि वो हमें मार्ग दिखाएंगे, और इस हमारी जो प्रयत्न है उसमें हमें वो जो भी हमें उन्हें देना है